Hello students, how are you? I hope you all are well at home. Today I am discussing with you a new exercise, that is exercise 14.3. Here we have to study median. We already discussed mode and mean. Now let's see what is median. We already discussed the median, basic concept of median we already studied in ninth class. Now median is defined as the measure of a middle term when observations are arranged in ascending or descending order of their magnitude. ना हो बेटा, हम मीडियन कैसे निकालते हैं? जब हमको नंबर ऑफ डाटा इवन गिवन हो और ओड गिवन हो तो हमने मीडियन निकालना सीखा था। तो नंबर ऑफ डाटा जब आपको ओड में गिवन है तो मीडियन विल बी वैल्यू ऑफ n प्लस वन बाई टूथ टर्म। ओके, नाउ नंबर ऑफ डाटा इवन जब आपको गिवन है तो हम मीडियन कैसे निकालते थे बेटा? वैल्यू ऑफ n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई टू प्लस वन टर्म डिवाइड बाई टू। तो जब हमको नंबर ऑफ डाटा इवन गिवन था तो हम इस तरह से मीडियन निकालते थे। ओके, now median, suppose I have to find out the median of the given data 4 6 9 10 11 12 and 13. The number of term we have to given 7, odd number we have to give, and then median will be n plus 1 upon tooth term, that is fourth term. Now median will be fourth term of the given data. When it is already given to you in ascending order, then fourth term of the given data will be 10. That's why median of the given series is 10. Now let's see median of the mean. We have to median we have to find out here. Okay, sorry, we in the question you have to write out mean. Here we have to find out median. Okay, now median will be here we have to term 8 term we have to give one, then median will be n by 2 term plus n by, plus 1 by 2 term divided by 2. Then after solving I will get for 24.5. Now median will be 24.5. Now this is very important portion, and this portion we have to study in 10th class. Median of grouped frequency distribution. तो बेटा जैसे मोड का हमारा जो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था, तो सेम फॉर्मूला हमको मीडियन में ये लर्न करना है जो रेक्टेंगल में लिखा हुआ है, दैट इज एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच. Now firstly I will understand what is the basic meaning of L, n by 2, C and F and H. Now L, जैसे हम बेटा मोड में मॉडल क्लास चूज करते थे, ऐसे ही मीडियन में हमको एक मीडियन क्लास चूज करनी है. ठीक है, आई विल डिस्क्राइब हाउ विल आई फाइंड आउट मीडियन क्लास. नाउ एल विल बी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. नाउ C is the cumulative frequency preceding the median class frequency. Now what is F? Frequency the class interval to which median belongs. Okay, एंड एच इज द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल. जैसे हमने बेटा वहाँ पे भी पढ़ा था, एच सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज. एन इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, capital N, that is sum of the frequency. Working rule, now we will discuss the question, then you can easily understand how we will find out the median. Okay, now firstly beta we have to given a data in intervals, distribution table we have to given, then wages given hai, number of laborers given hai. Okay, now let's see. Firstly I will choose median class. Then how will I choose? Suppose how will I choose the median class? बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करें, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसके साइड में एक कॉलम और कंस्ट्रक्ट करें. तो ये जो कॉलम है, दिस इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम. ओके, here we have less than type cumulative frequency we have to define. In the OGU curve we also discuss your more than type cumulative frequency, but for the calculation purpose I will always find the लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. जो भी हमने CF आज तक निकाला है, दैट इज लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज. Now, sir, what is more than type cumulative frequency? Then I will discuss in the next exercise more than type cumulative frequency. Firstly, I will find out cumulative frequency. कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? तो उसके लिए 3 सेम डाटा, फर्स्ट डाटा सेम लिखेंगे. देन 3 + 5 विल बी 8, 8 + 20 विल बी 28, 28 + 10 विल बी 38, एंड 38 + 6 इज टू 44. तो ऐसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे. 3 फर्स्ट डाटा सेम लिखेंगे, देन 3 + 5 8, 3 + 5 8, 8 + 20 28, 28 + 10 38, 38 + 6 44. तो ऐसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे. देन फर्स्टली एन अगर हम देखते हैं तो एन इज बेटा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो आप जब इस कॉलम का सम करेंगे, इस कॉलम का जब सम करेंगे तो वो भी बेटा 44 आएगा. तो 44 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला डाटा है वो ऑलवेज सेम आएगा. अगर नहीं आ रहा है सेम तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक की है.
ठीक है बेटा। तो कैपिटल एन दैट इज 44। नाउ आई विल डिवाइड 44 बाई 2। तो जैसे 44 बाई 2 डिवाइड करेंगे तो वो आपका बेटा आएगा 22। तो जब आपका ये 22 आएगा तो 22 से ग्रेटर और इक्वल, तो 22 से ग्रेटर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे दैट इज 28। तो ये वाला जो बेटा आपका रो है दैट इज योर मीडियन क्लास। Again I am discussing. Firstly I will find out n, that is 44. It is sum of frequency. I will divide 44 by 2, then I will get 22. तो 22 से जो ग्रेटर है बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 28। तो 28 वाला जो रो होगा दैट इज योर मीडियन क्लास, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पोर्शन। देखिए बेटा, एल मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है 400 है बेटा। एच क्लास साइज क्या है बेटा दैट इज 100, 400 और 500 के बीच का गैप 100 है। देन व्हाट इज सी, सी जो बेटा इस फॉर्मूले में जो हमें यूज करना है, देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आई है आपकी दैट इज 28, तो उससे पहले वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज योर सी। नाउ एफ इस फॉर्मूले में जो हमने यूज किया है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ओके, ध्यान रखना बेटा, बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, जहाँ पे सी आता है जो फॉर्मूले में वो इसी कम्युलेटिव को यूज कर लेते हैं एंड दैट इज रॉन्ग। ओके, तो आपको सी जो यूज करना है वो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से प्रीसीडिंग वाली जो हमारी कम्युलेटिव है उसको यूज करना है दैट इज 8। ओके, तो इस फॉर्मूले एल लोअर लिमिट क्या है मीडियन क्लास की 400। नेक्स्ट एच क्लास साइज, एन ऑलरेडी आई फाइंड आउट 400, सी cumulative frequency of preceding class that is 8 and f frequency of the median class। तो फ्रीक्वेंसी तो हमें मीडियन क्लास से लेनी है और कम्युलेटिव जो इस फॉर्मूले में यूज करनी है वो प्रीसीडिंग वाली यूज करनी है। ओके, नाउ आई एम पुटिंग वैल्यू ऑल द टर्म्स दैट इज एल एच एन सी एंड एफ इन दिस फॉर्मूला एंड देन आई विल फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द given data। Okay, now let's see next question I am discussing with you. We have to given the distribution table. Firstly I will find out cumulative frequency column 4 4 plus 5 9 22 42, ऐसे इस तरह से CF का जो कॉलम आ जाएगा बेटा। देन n is equals to 68। now n by 2 is equals to 34। now 34 से जो बड़ी वाली कम्युलेटिव है दैट विल बी योर मीडियन क्लास कम्युलेटिव। तो 34 से बड़ी बेटा कम्युलेटिव क्या है 42, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। अब अगर हम फॉर्मूले में टर्म की बात करें, एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 125, एच क्लास साइज बेटा 20 दी वन है, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 20, सी तो सी आपको फॉर्मूला में यूज करना है दैट इज प्रीसीडिंग कम्युलेटिव ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 22। then I will put all the value in this formula and I will get median of the given data। okay, now let's see next question that is very important। every year this type of question definitely appears in your UT, in your board exam। okay, now see carefully this question। we have to given a median that is 28.5। इस बार आपको मीडियन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, अननोन की वैल्यू पूछी है। ओके बेटा, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जैसे हम कॉन्सेप्ट यूज करते थे सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज। ओके, समेशन एफ आपको गिवन है 60, समेशन एफ और कैपिटल एन यू हैव टू गिवन 60। नाउ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे हम निकालते थे बेटा सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज 5 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स 5 plus x 20 25 plus x 25 plus x 15 40 plus x 40 x plus x plus y 40 plus y plus x। now 40 plus x plus y is equals to 45 plus x plus y। बट इन सब का जो सम है वो तो 60 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई बेटा, क्या मिल गई है, x plus y is equals to 15, 60 minus 45। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई है। तो यहाँ से इक्वेशन आई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, तो एक इक्वेशन आ गई बेटा। नाउ मीडियन वी हैव टू गिवन। अब देखो बेटा मीडियन जब आपको गिवन है और जब भी हमने पहले मीडियन निकाला, देखो यहाँ पे हमने मीडियन कितना निकाला है 137। तो ये जो मीडियन है ये बेटा हमेशा मीडियन क्लास का जो डाटा है, मीडियन क्लास का जो इंटरवल है उसी के बीच में आता है।
45, 125 और 145 के बीच में आ रहा है। देखो पहले वाला जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें मीडियन कितना आ रहा था 470, तो वो भी तो हमारा मीडियन क्लास का के इंटरवल में ही था। 400 और 500 के बीच में ही तो है 470। यहाँ पे जो हमारा मीडियन आया था 137, वो भी हमारा मीडियन क्लास का इंटरवल के बीच में है। तो अगर मुझे ये मीडियन गिवन है 28.5, इट मीन्स हमारा 100% जो मीडियन क्लास होगा वो कौन सा वाला क्लास होगा, जो 20 और 30 के बीच में। तो 20 और 30 के बीच में हमारा मीडियन क्लास है ये। तो दिस इज योर मीडियन क्लास, ये हमारा मीडियन क्लास है बेटा। तो यहाँ से अब हम ये फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे। लोअर लिमिट है इसकी 20, एफ है हमारा 20, सी है हमारा इससे प्रीसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी 5 + x। ओके, तो जब हम सारी वैल्यू पुट करेंगे और मीडियन हमको गिवन है, तो यहाँ से एक इक्वेशन और आएगी बेटा। तो वहाँ से हमारा डायरेक्टली x की वैल्यू आ गई 8। अब एक इक्वेशन हमने ऑलरेडी यहाँ से ले ली थी x + y = 15। x की वैल्यू हमारा मीडियन फॉर्मूले से आ गई 8। जैसे ही हम x की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। दैन वैल्यू ऑफ x = 8 एंड y = 7। And this is all about your median of this exercise. Okay, thank you everyone. In the next video we will discuss your ogive curve, and that is very important. Thank you everyone.